Do you think an inordinate amount of attention is being given to Diwali all of a sudden? And is it for reasons other than worries about pollution, health and the environment? The reason one is forced to ask that question is because of what we have seen over the last 3 days, before and after Diwali. First, it was Akhilesh Yadav who compared Diwali to Christmas and told people that maybe they should consider using lights just like people string up in Christmas instead of lighting diyas. The Samajwadi Party chief then went a step further and now he has questioned the wastage of money on celebrating Deepotsav. Deepotsav, remember, is this elaborate event which is organized in Ayodhya every single year, and lakhs of diyas are lit on the banks of the Saryu. It's a sight to behold, and yet again this year, after over 26 lakh diyas were lit on the banks of the river Saryu, it got a place in the Guinness Book of World Records. It was about beauty, it was about celebrating Diwali, it was about celebrating your culture, but we had the Aam Aadmi Party, we had Akhilesh Yadav saying, what is even the point? Aam Aadmi Party's MP Sanjay Singh went a step further and said that the lighting of these diyas in Ayodhya was quote-unquote a farzi astha ka prachar. UP Chief Minister Yogi Adityanath, though, was not buying into any of that, and over the last 3 days, he has continuously replied to Akhilesh Yadav and his ilk. Today, while in Gorakhpur, he launched a fresh attack on the Samajwadi Party chief and said that these are people who essentially find fault with anything that celebrates India, celebrates Hindu traditions. ये दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसे सगा हटाइए इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। आपने देखा होगा उन्होंने कहा ये दीप जलाने की आवश्यकता क्या है? प्रश्न देखिए आप। उन्होंने कहा इससे अच्छा मोमबत्ती जला लेते। उन्होंने कहा ये दीप जलाने की आवश्यकता क्या है? यानी उनको दीपावली से नफरत है। यानी अब तक तो हम सोचते थे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि से और हिंदू तीर्थों से ही इनको नफरत होगी, और यही बात उन्होंने इस बार यहां पर भी कही दीपावली के अवसर पर। यानी वे रामद्रोही ही नहीं है, कृष्ण द्रोही भी है और सनातन पर्व और त्योहारों के द्रोही भी हैं। So just when you thought that people were done berating Deepotsav, comes the familiar outcry about crackers causing pollution in Delhi and making the national capital choke. And for good reason, you would argue, because the air quality in Delhi nosedived on Monday itself. On Monday morning, it hit an AQI of 334 at noon. The pollution levels at 31 out of 38 monitoring stations redlined at very poor and were reported as severe at 3 additional stations. Now, people in the national capital woke up to a hazy, smoggy morning on Tuesday. That's when the real firecrackers were set off, the day after Deepavali. Aam Aadmi Party accused the BJP government of throttling people in the name of religion, asked them why did the Delhi government got the cracker ban lifted by the court at a time when pollution in the NCR was already skyrocketing. In reply, the BJP reminded them of their record and called the criticism more political than practical. देखिए, मेरा ये जो फोन है इसकी AQI ऐप है, ये तो 600 दिखा रहा है। पता नहीं सरकार ने तो क्या किया है, मुझे जानकारी नहीं है। मगर जिस सरकार की मुख्यमंत्री AQI भी नहीं बोल सकती हैं, वो IQ, AIQ, QQ पता नहीं क्या बोलती हैं उसको, तो मैं उनसे उम्मीद नहीं करता कि वो यमुना के पोल्यूशन को या एयर पोल्यूशन को समझ सकती हैं। मुझे लगता है कि उनको समझ नहीं है। मगर अभी जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है, उनकी तरफ के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो ट्विटर पे, फेसबुक पे लिख रहे हैं, देखिए आजादी के बाद पहली बार दिल्ली में दिवाली मनी और पहली बार हिंदुओं की सरकार आई है। तो क्या साहिब सिंह वर्मा मुसलमान थे? मदन लाल खुराना मुसलमान थे? सुषमा स्वराज मुसलमान थी? कम से कम उनको तो छोड़ देते, कम से कम यही कह देते कि बीच में कुछ हिंदुओं की सरकार आई थी। तो ये लोग प्रोपेगेंडा के अंदर इतने अंधे हो चुके हैं कि उन नेताओं को, जो इनके बड़े नेता हैं और तीनों इस दुनिया में नहीं है,
ये उन तक को हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने पहले जानबूझकर दिल्ली में पटाखे बैन कराए, एक विशेष वर्ग की वोट लेने के लिए, उनको खुश करने के लिए, और अब उनको खुश करने के लिए आज सुबह से अरविंद केजरीवाल जी की सारी टीम निरंतर दीपावली को कोस रही है। प्रभु राम जी के इस पावन पर्व को बार बार कोसा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पाप कर दिए लोगों ने, दिवाली क्यों मनाई। मैं बताता हूं, जो दीपावली को ये ब्लेम कर रहे हैं ये झूठ है, ये केवल एक किसी वर्ग को खुश करने के लिए किया जा रहा है। ये औरंगजेब और अकबर के चहीते बोल रहे हैं, जिन्होंने टिप्पू सुल्तान की फोटो लगाई थी विधानसभा में, वो लोग बोल रहे हैं। ये जो 10 साल तक अरविंद केजरीवाल 10 साल तक जो मुख्यमंत्री रहे। And that brings us to the big questions on which the buck stops here. What explains this constant deriding of a festival? Is the focus on Diwali and associated celebrations and the criticism it faces really based on facts? Is it rooted on politics? And a very, very simple question that we've asked right at the outset. Is this Diwali phobia? What are the facts? First, I want to go straight across to Manjinder Singh Sirsa. He's the Environment Minister of Delhi. Thanks very much, Mr. Sirsa, for speaking to us. सबसे पहले तो आपसे ये पूछूंगी, देखिए 500 का AQI हो गया है, आपने कहा था कि दिल्ली को आप बेहतर बना देंगे, क्या अचीव हुआ? आप सुप्रीम कोर्ट गए, आपने ग्रीन क्रैकर्स के लिए परमिशन वहां से हासिल कर ली, लेकिन अल्टीमेटली तो हजार्डस ही हुआ ना हमारे लिए, हवा तो हमारी गंदी हुई है। सही देखिए, ये तो एक पद्मजा जी जानबूझकर एक प्लान के तहत एक धर्म के लोगों को बदनाम किया जाता है। दीपावली को तो जानबूझकर बीच में लाया जाता है। मैं आपको पहले आंकड़ों के हिसाब से बताना चाहता हूँ। देखिए, 2020 में पटाखे बैन नहीं थे तो 414 दीपावली से एक दिन पहले का AQI था, और दीपावली से अगले दिन सुबह 10 बजे 435 था। उससे अगले साल 462 था, और पिछले साल 2024 में पटाखे बैन थे तो पटाखे बैन वाले दिन एक दिन पहले दीपावली से 328 AQI था, और दीपावली वाले अगले दिन सुबह 10 बजे 32 आंकड़े बढ़े, 32 पॉइंट और 360 AQI था। अब जबकि बैन खुल गया है तो दीपावली से एक दिन पहले 345 AQI था, और नेक्स्ट डे आज सुबह 10 बजे 356 AQI था, जो कि 11 पॉइंट का इजाफा हुआ है। तो जब पटाखे नहीं चले तब 32 पॉइंट का इजाफा हुआ, तब उससे पहले 83 पॉइंट का इजाफा हुआ 2023 में। 83 पॉइंट का इजाफा हुआ दिवाली वाले दिन से लेकर एक दिन पहले और रात को लेकर अगले दिन सुबह तक का। तो पहली बात, पोल्यूशन ज्यादा होना, AQI होना, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन इसको धर्म के साथ जोड़ना, दीपावली के साथ जोड़कर जो लोग बनाने की कोशिश करते हैं नैरेटिव, वो गलत है। वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। लेकिन पिछले 27 साल से ये बीमारी झेल रही है। बीजेपी की सरकार को आए 7 महीने हुए हैं, हमने इस AQI को कम किया है, चाहे मात्र 11% ही कम करने में हम कामयाब हुए। लेकिन पद्मजा जी, आपको एक बात याद रखनी चाहिए, 8% व्हीकलर जो गाड़ियां हैं उनके पोल्यूशन में इजाफा होने के, मतलब नई गाड़ियां आने के बावजूद, 21% कंस्ट्रक्शन बढ़ने के बावजूद दिल्ली के पोल्यूशन को हम कम करने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि हमने केवल 20 फरवरी जब हमने सरकार जिस दिन से टेक ओवर करी है तब से लेकर आज जब हम बात कर रहे हैं 27 लाख मेट्रिक टन कूड़ा हम दिल्ली से बाहर कर चुके हैं जी। दिल्ली के सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम ट्रांसपोर्ट कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पे ला चुके हैं। आज की डेट में कोई भी पोल्यूटिंग व्हीकल दिल्ली की इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं है। दिल्ली की लास्ट कनेक्टिविटी के लिए 1 मिनट और 10 सेकंड और देंगे मेरे को। कंस्ट्रक्शन पोल्यूशन को कम करने के लिए 500 मीटर तक की सारी बिल्डिंगें जो हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस कर रखी हैं। दिल्ली की सभी हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर स्मोक गन्स लग रही हैं। दिल्ली के अंदर नई सड़कों का जाल बिछाया गया ताकि मिट्टी को खत्म किया जा सके। इसलिए ये केवल और केवल पंजाब के अंदर जो आम आदमी पार्टी ने परसों से 3 दिन से जानबूझकर आग लगा रही पराली को, आज अखबारों में छपा कि सबसे ज्यादा पराली के इंस्टेंस कल हुए हैं। किसान पंजाब के पराली जमाना नहीं चाहते क्योंकि अब पराली के अगेंस्ट पैसे मिलते हैं, और वीडियो आई वगैरह या नहीं उसको ट्वीट करके बताया कि किसान रोक के कह रहा है हम नहीं जलाना चाहते, हमें मजबूर किया जा रहा है जलाने के लिए। कौन मजबूर कर रहे हैं? क्यों किसानों से जानबूझकर पराली को आग लगवाई गई? ये पाप करने का जो काम कर रहे हैं, वो बहाना लगाना चाहते हैं, वो दीपावली के पटाखों को बैन कराना चाहते हैं, वो हिंदू त्योहार को बदनाम करना चाहते हैं। मैं मानता हूँ सभी धर्मों का हमें सम्मान करना चाहिए। किसी धर्म के ऊपर ये जो है
पटाखा ये इसके ऊपर सिर पे नहीं फोड़ना चाहिए। ये AQI का मसला है, पोल्यूशन का मसला है, जो दिल्ली का मसला है, इसको धर्म के साथ जो जोड़ते हैं वो जानबूझकर जोड़ रहे हैं। ठीक है, मैं वो धर्म के मसले पर बस थोड़ी सी देर में आऊंगी, लेकिन सच बात तो यही है कि सिरसा साहब, AQI तो हमारा हजार्डस है ही ना। अब भले से ही वो पराली की वजह से हो रहा हो, वो तो हो ही गया ना। जी पद्मजा जी, पर आप इस बात से सहमत हैं कि जो 27 साल की बीमारी है, 10 साल आम आदमी पार्टी रही, क्या आपको लगता है कि ये 7 महीने में सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए था? आपको लगता है कि पोल्यूशन 0 होना चाहिए था? अगर आपको ऐसा लगता तो बताएं, और वरना उनकी बीमारी को ठीक करने में टाइम तो लगेगा ही। ये कैंसर से खतरनाक बीमारी देखे गए हैं, हम काम कर रहे हैं, हमारे काम में कमी तो बताए। ट्रैफिक बढ़ने के बावजूद हम पोल्यूशन कम करने में नहीं कामयाब तो बताए। सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक पे लाने पे हम कामयाब नहीं हुए तो बताए। दिल्ली के अंदर 25 लाख मेट्रिक टन कूड़ा नहीं निकालने में हम कामयाब तो बताएं। दिल्ली के अंदर सभी हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर हमने स्मोक टावर लगाने में नाकाम रहे, तो हमारी नाकामी कहाँ है? नाकामी तो उन लोगों की थी जो पंजाब के सिर पर फोड़ते थे। आपको याद करिए, अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि पंजाब से आता है धुआं। नहीं ठीक है, पर हम तो काम कर रहे हैं। कई लोग ये भी आर्ग्यू करेंगे ना कि ठीक है, आपने ये सारे काम किए हैं, आप ग्रीन ट्रांसपोर्ट ले आइए, आप कूड़ा हटाइए, लेकिन ये भी आप उसमें ऐड कर लेते। अगर इस साल पटाखे नहीं चलते तो और बेहतर हो जाता। थोड़ा सा आप मेरे अंदर से समझिएगा। जब किसी एक धर्म के ऊपर ऐसी रोक लगाई जाती है ना, लोग जिदबाजी में पटाखे चलाते हैं। पिछले साल इससे ज्यादा पटाखे चले थे। लोगों को जिद थी कि भाई हमारे धर्म पे ही बैन क्यों है, बाकी सारे 365 दिन तक प्रोग्राम हो गया और मेरे धर्म पे जाए, ऐसा लोगों के मन में गुस्सा था। मैं मानता हूं सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता निकाला है, 10 बजे तक क्रैकर अवॉइड किया। हो सकता है कि इसने इसकी वायलेशन भी की हो, लेकिन आज साल दर साल समझने लगेंगे लोगों को ये पता चल जाए कि बात सबको गलत नहीं किया जा रहा। अब हमें अपने धर्म को संभालने के लिए काम करना है। हमें अपने शहर को, जहां हमें अच्छा पर्व मनाना है, जहां हमने दीपावली बड़े सुंदर तरीके से मनानी है, वहीं पर्यावरण का भी ध्यान रखना है। ये खुद लोग अपने आप समझेंगे, लेकिन जब आप उनसे थोप कर कहते हैं कि तुम्हारा धर्म बैन किया जाएगा, तब लोगों को जिदबाजी में नुकसान करते हैं। देखिए सिरसा साहब, आप कह रहे हैं कि हमने ज्यादातर कंट्रोल कर लिया है जो हमारा स्मॉग है। ये आम आदमी पार्टी के जो सौरभ भारद्वाज हैं, वो तो कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं कि AQI जो है 999 से भी ज्यादा हो चुका है और सरकार जो है डेटा छुपा रही। तो क्या है, दिल्ली DPCC का पोर्टल है, CPCP का पोर्टल है, 10 तरह के पोर्टल आप अपने घर में ही देख सकते हैं। इसमें छुपाने वाली क्या बात है? गूगल पे ही करके देख सकते हैं। ये तो उनका बहाना है ना। देखिए, झूठ बोलना और कुफर तोलना तो आम आदमी पार्टी से ज्यादा किसी को आता ही नहीं है। इसमें तो उनकी कला है, तो मैं उनकी कला के आगे सिर झुकाता हूँ। ये कला में तो मैं हमेशा उनको माहिर मानता हूँ। नहीं, वो कह रहे हैं कि आपने पिछली रात का जो है, जो दिवाली रात का डेटा है, वो छुपाया है। गूगल में अभी डाल के देखिए कौन सा डेटा छुपाया गया। आप बताइए ना, या तो मुझे बताइए, आप खोल के बताइए। वो बोल रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ झूठ बोलने में उनके तो कला के 100 नंबर है। मैं तो मान ही रहा हूँ उनके झूठ के आगे। मैं अपने आप को पहले बोना बता रहा हूँ। मैं कौन सा लड़ रहा हूँ उनके झूठ के आगे? मैं कौन सा कहता हूँ कि नहीं मैं उनसे बड़ा झूठ बोल सकूं? मैं तो कह रहा हूँ मैं बोना उनके आगे। इस झूठ में कौन का मुकाबला नहीं कर सकता। आप खोलकर देख लीजिए डेटा कौन सा नहीं मिल रहा, मुझसे पूछिए, मैं जवाब दे देता हूँ। नहीं, क्योंकि जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि 8 से 10 बजे का जो कल रात का डेटा है वो दिख नहीं रहा है, अचानक से वो कम हो गया। बता सकते हैं मेरे को क्या डेटा था 8 से 10 का? कभी 600 भी रहा है, कभी 350 भी रहा है, कहीं 250 भी रहा है। एक मिनट का डेटा बदलता रहता है वो। सिरसा साहब, जो है ये आप पे इल्जाम है कि आप इसको कम्युनलाइज कर रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने अरविंद केजरीवाल को अरविंद खान क्यों कहा? गलत है। मैंने उसी टाइम रेक्टिफाई कर रहे। मैं उस टाइम औरंगजेब की और उनकी बात कर रहा था। मैंने बिल्कुल उनको कहा कि उनके फॉलोअर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं। अभी मैं कहता हूँ अरविंद केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल जी ही कहा है। अरविंद खान मेरे मुंह से निकला, मैंने 1 सेकंड में रेक्टिफाई किया। मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं है, ना मैं कोई ऐसी भावना थी मेरी। मैंने उसी टाइम रेक्टिफाई किया। मैं बोल भी सकता था, बोलने को मैं अभी भी बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी ऐसी भावना नहीं थी। नहीं, क्योंकि आप बार बार कहते हैं ना कि बकरीद पे आप कोई आपत्ति नहीं करते, उस पे करते हो, दिवाली पे। उसमें मैं खड़ा हूँ, वो मैं बात कहता हूँ, बिल्कुल सच है। कंपैरिजन नहीं किया जाता। ये कहा जाता है कि बाकी धर्म के अगर अलाउड है तो आप पटाखे क्यों बैन नहीं करते? आप इन पे क्यों नहीं बोल सकते? पद्मजा जी, आप उनको कहिए इस पे बोल के दिखाएं एक बार। वो बोल के दिखाएं कि ये बंद होना चाहिए, एक बार कह के दिखाएं। कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि उनका वोट बैंक की राजनीति करते हैं वो। और सभी धर्मों को अलाउड है। मैं तो खुद कहता हूँ कि जो इस्लाम के अंदर चीजें हैं उनकी पवित्र हैं, जो इस्लाम के अंदर उनके रीतो रिवाज हैं, जो धर्म की, तो उनको मनानी चाहिए भाई। हम उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी एक धर्म के लिए आप बैन लगा दें। बिल्कुल नहीं लगना चाहिए उनके लिए भी बैन। इसी तरह हिंदू धर्म के लिए भी लगना चाहिए। इस तरह सिखों के लिए भी उनको बैन नहीं लगना चाहिए। अगर वो तो सबके लिए हो, बराबरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिलेक्टिव करके एक पे बैन लगाओ। मैं तो कहता हूँ, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, लोगों को हक है कि वो पटाखे फोड़े, कम से कम एनफोर्समेंट तो होना चाहिए ना। चेन्नई पुलिस ने 319 केसेस रजिस्टर किए हैं, जो कि उन्होंने अपने डेडलाइन वायलेट की थी। आप लोगों को बुक करेंगे? आपको लगता है कि वो ऐसे लोग बुक होने चाहिए जो कि 10 बजे के बाद भी पटाखे फोड़ रहे थे? क्योंकि दिल्ली में तो सुबह 2-2 बजे तक पटाखे चले। पिछली बार को उठा के दिखाएंगे तो इससे ज्यादा वायलेशंस थी। तो इससे ये बात स्पष्ट होती, जो मैंने आपको कहा था कि कहीं ना कहीं जब लोगों को एक अपने परिवार में माँ बाप भी समझाते हैं,
परिवार भी कहता है कि देखिए आपके साथ कोई न्याय तो नहीं हो रहा, आपको पर्यावरण की चिंता करनी चाहिए, तो लोग समझदार होते हैं। लेकिन जब उनके पास जवाब, मेरे से सवाल लोग पूछते थे, मैंने खुद कहा टीवी था, हमसे लोग पूछते थे कि हमारा तो आपकी बहन अभी बाकी क्यों नहीं, तो मैं क्या जवाब देता। तो इसलिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बीच का रास्ता निकाला, इसका हमें सबको सम्मान करना चाहिए। और जिन लोगों ने रात को 10 बजे तक की सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप 8 से 10 तक अपने त्योहार को बड़ी श्रद्धा से मनाइए, इसके बाद जो जिन लोगों ने ऐसी वायलेशंस की हैं उनको मैं आग्रह करता हूं ऐसे काम हमें नहीं करने चाहिए। और मैंने पहले भी वीडियो डाल के कहा था, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात को मानेंगे, हर साल हमें अपने त्योहार को बड़ी खुशी से मनाने का मौका मिलेगा। हमें किसी के हाथ में मौका नहीं देना चाहिए ऐसा कि वो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाए। Okay, thank you very much, Mr. Siza, for speaking to us here. धन्यवाद पतंजलि जी, नमस्कार जी। Let's see what happens over the next few days if the AQI goes up and down.